Okay, let's start with this miscellaneous exercise of chapter 1. Look at this question number 1 here. In this question 1, it is I power 18 and this I 1 upon I power 25 power 3. We need to solve it. So let me explain it to you. And we know one thing is that I power 4 is 1. And if I power 4 into k, कोई भी multiple हो, that's also equal to 1. So you must keep this thing in your mind. Now let's proceed here. So I power 18 को मैं लिख सकता हूँ I power 16 or 4 into 4 plus 2, right? And this 1 power 25 is 1 or 1 power I power 25 को लिख सकते हैं 4 into 6, 4 6 24 plus 1 whole power 3, right? I hope this thing is clear to you now. आफ्टर दिस जो आई की पावर 4 into 4 है ये 1 हो जाएगा और 4 into 6 ये 1 हो जाएगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग, जो रिमेनिंग यहाँ पे बचता है दैट इज आई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1 अपॉन आई, राइट? आई स्क्वायर 1 अपॉन आई पावर 3. नाउ let us I square, we know that I square is equal to, yes anyone, what is I square? -1. Yes, absolutely right, it's -1. So I square की जगह पे मैं यहाँ पे -1 रख सकता हूँ और इस I को मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ I अपॉन I पावर 3. So it become -1 प्लस I अपॉन I स्क्वायर. I स्क्वायर अभी हम लोगों ने देखा I स्क्वायर होता है -1. So it can be written as, so this thing can be written as is equal to -1. I स्क्वायर को अगर -1 रखूं तो इट बिकम -I पावर 3. सो माइनस अगर बाहर कॉमन ले लूं तो इट बिकम 1 प्लस I पावर 3. सो नाउ वी नीड अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब. एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी दिस फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब? Sir, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Yes, good. 3ab square. Let us apply this formula here in this. So माइनस बाहर है, 1 का क्यूब 1 I क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा इंटू I प्लस 3 a is 1 और b square means I square, right? I hope this thing is clear to you now. It's 1. I cube क्या होता है? I cube is minus I. It can be written as 3I और ये I square को -1 रखेंगे तो it can be written as -3. So -3 -1 become -2 and it become plus 2I. So यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 minus 2I is the final answer in this case, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the question number 2. Look at this question 2 here. In this question 2, for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2. So suppose इसमें मैं लेट कर दूं, अगर यहाँ पे सपोज z1 को ले लेता हूं a plus ib, राइट, एंड z2 सपोज आई टेक इट एज c plus id. तो मैंने दो नंबर यहाँ पे जनरल नंबर सपोज कर लिए. तो अब मैं इसका इनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करता हूँ z1 into z2, राइट? सो z1 z2 फाइंड करते हैं. इट्स a plus ib and c plus id. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, a मल्टीप्लाइड विद दिस टोटल ब्रैकेट प्लस दिस ib मल्टीप्लाइड विद दिस टोटल ब्रैकेट, राइट? नाउ ओपन द ब्रैकेट. ये आएगा ac प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वायर, राइट? वी नो व्हाट इज I स्क्वायर. I स्क्वायर इज -1. सो ये AC मैंने यहाँ पे लिखा और ये -1 लिखूंगा तो इट बिकम -BD, राइट? अब इन दोनों टर्म से I कॉमन ले लेता हूं तो इट बिकम AD प्लस BCI, राइट? नाउ दिस इज z1 z2.
अब आप इसमें देखिए Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल पार्ट? सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द I के साथ इमेजिनरी पार्ट. सो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2? So real part of Z1 into Z2 is AC minus BD, right? So basically this is the left hand side. जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है AC माइनस BD. अब आप ऊपर से देखिए व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1. Z1 का रियल पार्ट RE फॉर रियल, रियल के लिए R1, RE डिनोट किया है यहाँ पे. सो इट इज A, राइट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज B. And what is the real part of Z2? Real part of Z2 is, this is the real part C, and imaginary part D. Imaginary part of Z2 is D, right? अब आप यहां से अगर LHS फाइंड करते हैं, LHS तो हमने फाइंड कर लिया. RHS फाइंड करते हैं. Look at this. RHS में क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 and रियल पार्ट ऑफ Z2. Put the values here. Real part of Z1 is A and it is C, so it AC minus imaginary part of Z1, imaginary part of Z2, imaginary part is BD. Now look at this, what is LHS? So we can say that LHS is equal to RHS, hence proved, right? LHS भी यहाँ पे AC minus BD है और RHS भी AC minus BD ही आ रहा है. I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question 3. इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ इसमें. तो एलसीएम लेके आएगा 1 माइनस 4i मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आई. ठीक है, ऊपर आएगा यहाँ पे नोमिनेटर में दिस 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड ऑन दिस साइड, और ये 4 माइनस 1 माइनस 4i ऑन दिस साइड, right? After that, put it into the bracket and total bracket, and it's 3 minus 4i upon 5 plus I, right? Then open the bracket, 1 plus I minus 2 plus 4 to the 8i अपॉन, नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर. ये आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम डूइंग हियर. जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन आई एम डूइंग. ओपन द ब्रैकेट्स हियर. After that, solve it little bit. 1 minus 2 minus 1, 8 plus this 9i, and in the denominator it is 3 minus 4i. ये आ गया. यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर को क्या रख सकते हैं. आई स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो दैट इट्स इक्वल टू -1. सो यहाँ -1 रखेंगे, इट बिकम 4. 4 प्लस 1 5 माइनस 3i एंड 5 प्लस आई एज इट इज. अब फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं. नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट हियर. इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट बिकम -3 प्लस 4i, 9 3 जा 27i, 9 4 जा 36 i स्क्वायर अपॉन 5 5 जा 25, 5i, 15i, 3i स्क्वायर. देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये देखिएगा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 3 33, 27 प्लस 4 37i अपॉन, ये 25 है और ये आई स्क्वायर को -1 रखेंगे, इट बिकम +3, 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 10i. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है. अब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम लोग डिनोमिनेटर को. तो इट कैन बी रिटन एज 28 प्लस 10i upon 28 plus 10i, right? So in the denominator
नोमिनेटर में आएगा 33 इंटू 28 प्लस 330i प्लस 31 इंटू 28i प्लस 310i स्क्वायर। तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ आई ओपन द ब्रैकेट। एंड नीचे आएगा 28 स्क्वायर माइनस 10i का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर में अप्लाई किया, राइट। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दिस 33 विथ 28 and multiply this 33 with 28 and tell me what is the number. Multiply it on your notebook and tell me. And multiply this 31 with 28 and tell me and what is the square of 28. Sir, 33 into 28 is 924. 924, okay. 924 और ये आई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -1, तो इट्स -310, okay. Then multiply this 31 with 28. What will be the number? So 28 square will be 784. 784, okay. And what will be this number 31 when multiplied with 28? Sir, 868. What? 68. 8, 68. 68, right? Okay. Now 924 minus 310 will become 416 plus. इनको ऐड कर देते हैं 8, 9, 11i अपॉन ये आई स्क्वायर होगा -1, तो -1 होगा तो ऐड हो जाएगा, इट बिकम 884. Now open the LCM here, it's 614 by 884 and plus 1198 I by 884. Right, now divided by 2, 3 2s are 6 and 2 7s are 2 4s are 4s are 2, 2 5s are 2 9s are 2 9s are it's not 2, it's 3. So this is the final answer in this case. This is the standard form, right? This is the standard form, so we can write it as 307 or we can leave it here. 307 plus 599i divided by 442, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 4 here. If x is given, x minus iy is given root a minus b upon c minus id, prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. So let me explain this to you. तो आपको जो गिवन डाटा है यहाँ पे, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. So what I am going to do here is I am going to square on both the sides of this number. तो अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं इस नंबर का और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट.
After that, open the square, it become x square plus I square y square minus 2xyi is equal to a minus ib upon c minus id. So this I square will become minus 1. So it can be written as x square minus y square minus 2xyi is equal to a minus ib upon c minus id. Now what to do? Now in this step we need to rationalize this also. इसको भी rationalize कर देते हैं parallelly. So if we rationalize this a minus ib, तो इसको अगर हम लोग rationalize करें तो it become c plus id upon c plus id से मैंने इसको rationalize कर दिया इस साइड में, राइट। इसके बाद यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेट मी राइट दिस स्टेप अगेन, इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा AC और B इंटू दी दिस विल बिकम प्लस BD माइनस इट्स, लेट मी ओपन इट प्रॉपरली तो आपको अच्छे समझ में आएगा। A को C से मल्टीप्लाई किया, AD को I से मल्टीप्लाई किया, BC को I से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस BD I स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो इट्स बिकम C स्क्वायर माइनस ID स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अप्लाई हुआ है, राइट। आफ्टर this thing as it is, and what is this, if you put this I square equal to minus 1 तो ये बनेगा हमारे पास AC plus BD, ठीक है, and take I common from these two terms तो it become AD minus BC I अपॉन C स्क्वायर, I स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 तो it become C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। नाउ इफ यू ओपन द एलसीएम हियर, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ओपन करेंगे तो दिस D स्क्वायर C स्क्वायर दोनों के नीचे आ जाएगा, राइट। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हियर ऑल्सो एंड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हियर ऑल्सो, राइट। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर, इफ आई टेक दिस एज माइनस साइन, यहाँ पे मैं अगर माइनस साइन लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे। सो रिवर्स कैसे, यहाँ पे आ जाएगा BC और यहाँ पे आ जाएगा AD, अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया। अब आप देखिए, अब इसको कंपेयर करते हैं। ऑन दिस साइड रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस, एंड हियर ऑन दिस साइड रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं दो नंबर्स इक्वल कब होंगे, व्हेन द टू नंबर्स आर इक्वल, when their real part and imaginary part equal. This thing we have already discussed, so therefore we can conclude from here is that x square minus y square is AC plus BD upon C square plus D square, right, and 2xy is equal to BC minus AD, imaginary part imaginary के equal और real part real के equal, C square plus D square. I hope up to here it is clear to you. So this is little bit lengthy question and important also. Now you must remember a formula that x square plus y square का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूं, if I find out the square for this, so this ये फॉर्मूला मैं बना के दिखाता हूं आपको। It is x square square y square square, so this is the basically this is the left hand side,
द क्वेश्चन एंड माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, 2ab। सो लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन की, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिएगा आप, इफ आई ऐड इन दिस फॉर्मूला, इफ आई ऐड 4x स्क्वायर subtract 4x square y square in this and plus 4x square y square in this, ऐसा मैं कर सकता हूं। same thing we can add, so what we have obtained, if you look at this, this is this thing, और ये देखो इन दोनों को करके क्या आएगा, -2x square y square। सो इस टोटल की जगह पे मैं फॉर्मूला बना सकता हूं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या आने वाले हैं, ये दोनों आने वाले हैं -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, ये लास्ट वाली टर्म। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे पास दो टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। अब मैंने इसको इसी फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, लेट अस पुट द वैल्यूज हियर, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy है मेरे पास BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है, लेफ्ट साइड मैंने ले लिए, अब हमें C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और ऊपर आना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो देखो नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूं, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर एंड BC माइनस AD का होल स्क्वायर, राइट। नाउ लेट अस अप्लाई द A प्लस B होल स्क्वायर। A प्लस B होल स्क्वायर ऊपर अप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD। इसमें अप्लाई करेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये आएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर इज सेम, इट्स C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप ये देखेंगे तो दिस टर्म कैंसल दिस, राइट, देन अब ये टर्म देखिए यहाँ पे, इस टर्म A स्क्वायर C स्क्वायर में से और इस टर्म A स्क्वायर D स्क्वायर में से क्या मैं A स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? अंदर कौन बचेगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से देखिए, इस टर्म्स में से और इसमें से क्या मैं B स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? अंदर कौन बचेगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। In the denominator it is C square plus D square whole square. Now take C square plus D square common in the numerator. Then what is remaining inside? It's A square plus B square upon नीचे आ रहा है C square plus D square का whole square. अब यहां से इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी and this is the final answer in this case. That is what we need to prove. A square plus B square is equal to C square plus D square is equal to RHS। तो ये हमने LHS लिया हुआ है, तो LHS क्या लिया हुआ है हमने? X square plus Y square का होल स्क्वायर, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो एक बार मैं और बता देता हूँ क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्क्वायरिंग की है दोनों तरफ, फिर मैंने इसको ओपन करके यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया, राइट साइड को कंपेयर किया, तो रियल पार्ट मेरे पास आ गया यहाँ पे, रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस। इससे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे। सो दिस इज द आइडेंटिटी, यू मस्ट रिमेंबर, यू कैन यूज इट डायरेक्टली ऑल्सो। ये आइडेंटिटी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैंने फॉर्म की और इस आइडेंटिटी से देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, दैट इज द ओनली द कैलकुलेशन पार्ट हियर, राइट। I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question 5. So we need to reduce it into the polar form. Polar form में इसको reduce करना है,
तो उससे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, नीचे भी आई है ऊपर भी आई है, आई एक जगह ही होना चाहिए। तो नीचे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन इट्स 1 प्लस 7i, आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4i, इसको रेशलाइज कर लीजिए, 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i, तो रेशलाइज करेंगे, देन वी हैव ऑब्टेन्ड, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4i का होल स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देन वी हैव ऑब्टेन्ड 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i की पावर 2, right? So then this I square will become -1, तो ये आएगा -28 प्लस 3 -25 and it's become 25i. So this is the z value, suppose this is the z upon, नीचे देखो 9 और ये आएगा 16 और i स्क्वायर, 16i स्क्वायर विल बिकम -1, 16 प्लस 9 25, अगर ऊपर से 25 कॉमन लेके नीचे से कट कर दें तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस i, राइट? सो वी नीड टू रिड्यूस इट इनटू द पोलर फॉर्म, तभी हमने z को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है।